All right, so let's start. Let's begin basically with where we had left in last class. Those who have watched the lecture, very good. Those who did not, let me basically summarize what we had done. So these were the learning outcomes that I had discussed in the last class, in which I had discussed all the functions of all the parts of the alimentary canal except ileum, colon, rectum, and anus, right? Because ileum's function is absorption, and this is what we are going to do today in detail, that how absorption of the smallest and the simplest molecule is done in the ileum. Secondly, I had also discussed the enzymatic reactions that occur basically from mouth till the duodenum. And in your syllabus, we only have to discuss the digestion of carbohydrates, in which starch is there, and complete digestion of starch into glucose, which is basically a two-step digestion. That first starch is converted into maltose by amylase, and then with the action of maltose is converted into glucose. Secondly, we had to study the digestion, chemical digestion of proteins with the help of gastric protease, that is pepsin, and then the pancreatic protease, that is the trypsin. फिर उसका मैंने डिस्कस भी किया था कि उनका क्या पीएच डिफरेंस है, और वर्किंग सेम है, प्रोडक्ट वही बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड अमाइनो एसिड्स, बट जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जगह चेंज है, और इसके साथ साथ में यस okay but it doesn't mean that you will leave the lecture, right? So then I had also discussed that gastric acid, the gastric juices, which contains hydrochloric acid. I had also discussed the functions of hydrochloric acid and bile, how bile is important in emulsifying fat. I had also discussed what is emulsification. So this is all. These are all notes that I prepared during the class, recording the class yesterday. So I have discussed everything. Now, today we have to discuss peristalsis. Now, peristalsis, as I told you that a couple of years back, there was a 7 mark question regarding peristalsis, that how is the food moves along the elementary canal, and then you have to discuss the whole process, in which you, when you write down only the name of the process peristalsis, give you 1 mark. ठीक है, peristalsis अब होता क्या है, अब सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि how is the wall of the elementary canal made up of. Now, as you can see in this diagram, right, that this wall of the elementary canal, whole elementary canal, means from esophagus till rectum. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी वॉल जो है, राइट, इट हैज़ सम टिश्यू लाइनिंग्स हैं, इसकी मस्क्यूलर लाइनिंग है, मस्क्यूलर वॉल होती है हमारी, ठीक है। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट का मतलब है इनर मोस्ट, सॉरी, आउटर मोस्ट आपकी ये आ जाएगी, और इनर मोस्ट यानी ये वाली लेयर जो है, दैट इज़ बेसिकली एक्सपोज्ड टू द फूड दैट इज पासिंग थ्रू इट, ठीक है। ये जो लाइनिंग कहलाती है, दिस इज अ एपिथेलियल सेल लाइनिंग्स, ठीक है। और इसी के लिए मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था कि हमारे जो स्टमक के सेल्स होते हैं और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स, दे रिलीज म्यूकस, जो कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, ताकि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो हमारे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स को डाइजेस्ट ना करें, ठीक है। अब अगर आप एपिथेलियल सेल लाइनिंग, इनके अंदर अगर आपको पिट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, बेसिकली ये स्टमक की वॉल के अंदर भी होता है, जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जो कि जिनकी सीक्रेशंस होती हैं, एंजाइम्स होते हैं। नाउ इफ़ यू कैन सी दैट, यू कैन सी द 2 मसल्स हियर, एक तो आपको ये मसल नज़र आ रहा है, राइट, एंड एक ये नज़र, मस्कुलर वॉल नज़र आ रही है। अब इफ़ यू रिमेंबर, नाउ दिस इज़, आई परहैप्स दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी। अब तक जो हम फर्स्ट टॉपिक से लेकर के चल रहे हैं, उसके अंदर आप ये टर्म पहली दफ़ा पढ़ेंगे, बट ये इस तरह के पेयर ऑफ मसल्स आपको आगे डिफरेंट चैप्टर्स में आते रहेंगे, एटलीस्ट 2 दफ़ा तो और आएंगे। एक आपके गैस एक्सचेंज में आएंगे, और एक आपके जब आप कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आई को पढ़ेंगे, आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दीज आर द 2 मसल्स, जो एपिथेलियल सेल के बाद अगर आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है, ये आपका एपिथेलियल सेल लाइनिंग है, लेट्स से, ठीक है। इसके बाद एक और लाइनिंग है, और एक और लाइनिंग है,
ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, एंड दिस। तो ये वाली जो एपिथेलियल सेल लाइनिंग है जिसके अंदर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रही हूँ, दीज आर कॉल्ड द सर्क्यूलर मसल्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द सर्क्यूलर मसल्स। ये सर्क्यूलर रिंग ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, दे आर लाइक दैट। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके बाहर वाले की बात करें, ठीक है, राइट, ठीक है, ये वाले जो मसल्स हैं ये हमारे दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये जो लेयर है दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ के ऊपर। राइट, ओ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमारी एपिथेलियल सेल लाइनिंग है, और ये आपके हैं हमारे दीज आर द, मैम यू आर अनऑडिबल, आई एम अनऑडिबल, कैन एनीवन लिसन मी? Yes, Ibrahim, perhaps check your internet connection. Perhaps there is something wrong with your internet connection. That's why you cannot listen hear me. तो ये वाले मसल्स हैं आपके सर्कुलर मसल्स, और ये वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। दीज पेयर वर्क एंटागोनिस्टिकली। अच्छा, ये एंटागोनिस्टिक मसल्स कहलाते हैं। लेट मी राइट हियर, ये वर्क इन पेयर, ये वो मसल्स होते हैं जो कि पेयरिंग में वो काम करते हैं। पेयर का मतलब ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहला रिलैक्स करता है। ठीक है, स्क्रीन इज़ नॉट शोन। आई थिंक इब्राहिम देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज आई हैव कनेक्टेड विथ माई another device as well, and I can see my screen. I think there is something wrong with your uh, yes, why not, you may rejoin। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड दीज आर द सर्कुलर मसल्स। जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलर मसल्स करेंगे। और होता ये है कि ये दोनों मिलके एक काम कर रहे होते हैं। तो वेन एवर देयर इज़ अ पेयर ऑफ मसल्स दैट आर वर्किंग टुगेदर, they are called antagonistic muscles. Let me write that how they are written. They will be written as right. So antagonistic muscles. This is a term that you should remember. Or those muscles, a pair of muscle. Oh, azan, just azan break. All right. So I was discussing the circular muscles and the longitudinal muscles in the alimentary canal wall. They are antagonistic. So if one of them is contracted, the other one relaxes. So when the food has been ingested at the mouth and when it moves along in the gut by contraction of muscles in the gut wall, these two layer of muscles, that is circular and longitudinal muscles, they work antagonistically, and in order to push the food forward. And how do they work? They work in a coordinated way, right? Behind the mass of the food, as you can see that in this diagram, that this is the bolus or this is the mass of the food, right? Now behind the mass of the food, now food is moving, see the arrow's direction. Now the food is moving from here to here. Now behind the food mass, the circular muscles contract, right? And when the circular muscle contract, the the longitudinal muscle here, they are relaxing, and together they are making this gut to constrict. Now constrict means become narrower. This pushes the food along the lumen. Now this is pushing the food along the lumen. Now in front of the mass, now back पे क्या हो रहा है कि these circular muscles, they are contracting, और जो longitudinal muscles हैं वो relax कर रहे हैं। जब ये दोनों एक contract और ये relax कर रहा है तो इसकी वजह से here this lumen of the elementary canal, this is contracting, ये contract कर रही है। आगे की तरफ जाएं, जो मास जो फूड के आगे वाला हिस्सा है, फ्रंट साइड है, जिस जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं, और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये जगह नैरो, ये जगह डायलेट हो जाती है, यानी वाइडर हो जाती है, खुल जाती है, विच अलाउज द फूड टू मूव फॉरवर्ड इन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द गट. So this rhythmic wave of contraction and relaxation
basically passes down the food into the gut and pushing the food along, and this is known as peristalsis. ठीक है, और ये वेव ऑफ मोशन है, दिस इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक कॉन्ट्रैक्शन है, नो, अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेव का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स हुई। यही सेम चीज़ अगर आप ना इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन, क्योंकि इसी जैसी चीज़ जब हम व्हेन वी विल बी स्टडिंग ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स और ह्यूमन, तो हम वहाँ पे आर्टरीज में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर भी पल्सेटिंग मूवमेंट होती है, वो वेव ऑफ जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होता है, इसी तरीके से हमारी आर्टरीज जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, रिलैक्स हो रही होती है। तो मसल्स का इस तरीके से, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुए फिर रिलैक्स हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है। पीछे से, पीछे की तरफ, फूट के पीछे की तरफ द सर्कुलर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, and here the longitudinal muscles are contracting and together they are pushing the food forward। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन लिखें, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के नाम लिखें, और ये बताएं कि किस तरीके से कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन रिलैक्स कर रहा है। तो दिस बेसिकली विल कंप्लीट योर आंसर, आपको 7 मार्क्स में से। यस इब्राहिम। Circular and longitudinal muscles are basically the muscles which are present in the wall of this elementary canal। ठीक है, उस वक्त शायद you could not see the screen, that's why you couldn't see it। Now if you can see that this is basically the cross section of the elementary canals wall। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैंने इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करें, तो ये जो सीढ़ी वाला जो जैसा बना हुआ है, दीज आर द सर्कुलर मसल्स, और ये जो ये वाले हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर हैं। तो जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते, द टू मसल्स दैट वर्क टुगेदर, इफ वन कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर रिलैक्स, एंड इफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट वन रिलैक्स, इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स। तो इनकी मूवमेंट, एंटागोनिस्टिकली मूवमेंट की वजह से जो है वो फूड आगे बढ़ रहा होता है। वरना ऐसा नहीं है कि यू आर स्वेलिंग द फूड और फूड स्लाइड करता हुआ जा रहा है, या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्लाइड करता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, फूड के साथ जो वाटर होता है वो उसको हेल्प कर रहा होता है मूवमेंट में। अब आप ये भी नोट करेंगे कि अगर आप का फूड जो है वो थोड़ा सेमी सॉलिड है या वाटरी है, तो आपको उसको खाने में आसानी रहती है, ठीक है। बट अगर वो बहुत ड्राई है, तो समटाइम्स यू फाइंड इट कि वो आपकी जो है वो एसोफे थोड़ा हलक में अटक रहा है, या उसको पास ऑन होने में मसला हो रहा है। समटाइम्स यू टेक मेडिसिन विथ वेरी इनसफिशेंट वाटर, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो सीने में, एसोफेगस में थोड़ा अटक सी रही है, तो दैट्स वाई यू टेक द वाटर। तो वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द फूड, बट हम खाने के साथ तो इतना पानी नहीं पी रहे होते, बट स्टिल इट हैज़ टू बी मॉइस्ट। और प्लस ये मूवमेंट, ये जो मोशन है, और ये सिर्फ एसोफेगस में नहीं होती है, यही मोशंस जो होती हैं वो हमारे स्टमक की वॉल्स की भी होती हैं, बट दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्गर, विच आर कॉल्ड द चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक वॉल। और इसके बाद जब फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ पे तो वो स्टे करता नहीं है, वो बस इस ये मूवमेंट्स होती रहती हैं, एंड फूड मूव्स अलोंग द स्मॉल इंटेस्टाइन के। अगर आप इसमें देखें, ये जो यहाँ पे आपका जा रहा है कि यहाँ से जब स्टमक से निकला, तो बस अब ये मूवमेंट से स्लोली ग्रेजुअली इसी मूवमेंट के साथ ये फूड मूव कर रहा होता है, और इसी मूवमेंट में ही साथ साथ में ये मिक्स होता जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, और इसी दौरान इसकी डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होती चली जाती है, अनटिल इट रीचेस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ द इलियम। ठीक है, आप ये इलियम में जब पहुंच जाता है ना, इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज़ द पार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट डाइजेस्टेड फूड। अब आपका फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, यानी कि फिजिकली डाइजेस्ट भी हो गया, केमिकली डाइजेस्ट भी हो गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, एंजाइमेटिक डाइजेशन हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और कि स्टार्च जो है वो आपका अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, बट दैट maltose is converted into glucose by maltase enzyme which is actually produced by this। यहाँ पे जो इलियम के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल लाइनिंग है, ठीक है, जो बिल्कुल इनर मोस्ट सेल लाइनिंग होती है जो कि फूड के साथ एक्सपोज होती है, उसके सेल्स माल्टेज रिलीज कर रहे होते हैं। तो जब हमारे माल्टोज और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वहीं पे ही वो
हाथ के हाथ वहीं पे माल्टेस एंजाइम इमोबिलाइज हुआ हुआ होता है, उनकी ब्रशिंग वॉचेस पे होता है, उनकी सेलेजेस पे, और वहीं पे वो उसको माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता जाता है और ग्लूकोज अंदर जाता जाता है, बिकॉज माल्टेस येस इट इज़ अ सिंपल शुगर बट स्टिल इट्स अ डाइसैकेराइड, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मोनोसैकेराइड। ठीक है। अब हम अब हम वी शुड नाउ मूव, ये हमने पेरिस्टालसिस डिस्कस कर लिया। ठीक है, कि हाउ पेरिस्टालसिस इज डन। नाउ अब हमारा फूड जो है वो इलियम में पहुंच रहा है। अब इलियम का फंक्शन अगर हम आ जाएं, राइट, राइट, तो नाउ इलियम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन of all digested food. Now, always remember, only the macromolecules are digested. Mineral ions, vitamins, water, they do not need to be digested. They are simply directly absorbed. They do not need they do not need any chemical digestion. Absorption. I'm not talking about assimilation because assimilation comes after absorption. We are talking about absorption. Absorption means कि आपकी जो intestine के lumen में ना, what is lumen actually? अब ये आपकी for example, if you can see कि ये आपकी ट्यूब है, ये आपकी इंटेस्टाइन है, तो ये वाली चीज़ है ना, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमेन। ये हिस्सा है जिसके अंदर से फूड आपका गुजर रहा है, दिस इज द ल्यूमेन, राइट। इस ल्यूमेन से इन सेल्स के थ्रू जो है वो, ठीक है, या अब ये जो इसके सेल्स होते हैं ना, सेल लाइनिंग होती है, इट इज़ बेसिकली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड लेक्टियल्स। यहाँ से इस फूड को इसके अंदर जाना है, ठीक है, और जब इसके इसके अंदर जाना है तो दे आर वेल सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड लेक्टियल्स, जहाँ पे इस फूड को एब्जॉर्ब होना है, क्योंकि फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा और वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम तक पहुँच जाएगा और फिर हमारी बॉडी से एज अ फीसेस रिमूव हो जाएगा। तो वो तो खाना खाना ज़ाया हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईटिंग फूड? Purpose of eating food is to basically get the nutrients out of that food, because we require energy, we require the nutrients for making our proteins and for gaining the energy, तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो दिस फूड हैज़ टू बी मैक्सिममली एब्जॉर्ब। ठीक है। तो अब हमारा इलियम, नाउ दिस इलियम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं? वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लूस्ट्रोल्स। बाकी न्यूट्रिएंट्स में हमारे जो अनडाइजेस्टेड हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है डाइजेशन की, लाइक वाटर, मिनरल एंड वाइटामिन्स, वो भी है। अच्छा, नाउ देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस एज वेल which are not digested at all, but we who requires digestion. For example, फाइबर है। हमने शुरू में पढ़ा था कि फाइबर रफेज जो होता है, जो कि हमारी एक्चुअली दे आर द प्लांट सेल वॉल्स, जो हमारे हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, तो उसकी जो सेल वॉल्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। नाउ दिस सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। It's because the enzyme that is required for the digestion of cellulose is not produced in our body. हम नहीं बनाते cellulase enzyme। तो सेलुलोज जो होता है वो बेसिकली एक्ट एज अ फाइबर। वो क्या करता है, वाटर थोड़ा अपने अंदर एब्जॉर्ब रखता है, वो हमें कॉन्स्टिपेशन से रोक रहा था। इट बेसिकली हमारी, वो इतना टफ सा होता है कि वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को सिग्नल देता है कि डू द पेरिस्टालसिस। तो जो लोग फाइबर जिनका इंटेक अच्छा नहीं होता, क्योंकि अब ये सोचने वाली बात है ना कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये तो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है, सम टाइम कुछ ऐसा भी फूड होता है जो हमने अच्छे से च्यू नहीं किया होता, तो वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो वो सिग्नलिंग नहीं दे रहा होता हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को टू डू द पेरिस्टालसिस, स्ट्रॉन्गर पेरिस्टालसिस, कि हमें बाल मूवमेंट हो सके। तो फाइबर डज दैट जॉब। ठीक है। तो इट्स एड्स इन डाइजेशन, इट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। हाँ, सम ऑफ द फाइबर इज यूज बाय द बैक्टीरिया that lives in our large intestine and that makes those vitamins which are needed by our body, but we cannot make them। तो वो symbiotic relationship में वो रह रहे होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेलुलोज को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इलियम के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स सब यहीं पे ही एब्जॉर्ब होते हैं।
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह ये कुछ भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता एक्सेप्ट सम ऑफ द वाटर. इवन वाटर इज मेजरली 90%, 95% वाटर जो होता है वो इलियम में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. सारी एब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो इलियम के अंदर हो रही है. अब नाउ इफ सिंस द फंक्शन ऑफ द इलियम इज एब्जॉर्प्शन, सो इट्स वॉल इज ये स्ट्रक्चरली अडेप्टेड है. Now, how it is structurally adapted, let me show you. ठीक है. सो वॉल ऑफ इनर, ये आपका आपका epithelial, you should say that epithelial cell lining, epithelial cell lining, epithelial cells of ileum wall are structurally. अब नाउ हर चीज़ जहाँ जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होती है दे आर स्ट्रक्चरली अडेप्टेड. हाउ दे आर स्ट्रक्चरली adapted for absorption. Now, how they have structure, they have millions of folds in them. इनकी जो वॉल होती है वो स्मूथ वॉल नहीं होती है. लाइक अगर हम मैं इस किस्म की एक वॉल ड्रॉ करूं, जैसे ये वॉल है और ये इसका लियोमेन है जिसमें से आपका डाइजेस्टेड फूड गुजर रहा है, तो उसकी वॉल जिस इट्स नॉट अ स्मूथ वॉल. इसकी वॉल जो इपिथेलियल सेल लाइनिंग है उसमें होते हैं बहुत सारे फोल्ड्स. इस किस्म के फोल्ड्स होते हैं. ठीक है. विच अब ये फोल्ड्स आपको वैसे लग रहे हैं. ठीक है. मैं आपको इसकी एक डायग्राम भी दिखाऊंगी जो ओरिजिनल जो एंडोस्कोपी के दौरान जो है वो ली गई. अब ये फोल्ड्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लाइनिंग. अब सरफेस एरिया अगर ये सिंगल होता तो आप ये देखिए, अगर ये स्मूथ ऐसे होती तो सिर्फ इसका जो एक्सपोजर होता न्यूट्रिएंट्स का वो सिर्फ यहाँ तक होता. लेकिन अगर हम ये देखें तो एक्सपोजर कितना बढ़ गया, जस्ट लाइक रूट हेयर सेल्स की तरह. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये अभी आपको ऐसा लग रहा है, मैंने खैर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बना दिए, बट ये जो फोल्ड्स हैं दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द इलियम्स वॉल, जिसकी वजह से टू बेसिकली फैसिलिटेट द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स. जितने न्यूट्रिएंट्स हों वो डिफ्यूज़ कर जाएँ, उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चले जाएँ. अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाती हूँ. ठीक है, कि हाउ इट इज़ अडेप्टेड. आई विल बी पेस्टिंग सम पिक्चर्स. ठीक है. अगर हम अपनी इंटेस्टाइन को ओपन करें ना, तो वो हमारी जो इंटेस्टाइन होगी, राइट, अगर हम लाइक इसको करें तो ये ऐसे दिखेगी. ठीक है. जैसे ये फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं. अगर हम इसको बीच में से कट किया, मैंने भी ड्रॉ किया, मैंने तो खैर बहुत ख़तरनाक किया है, बट दीज आर द सर्कुलर फोल्ड्स. ठीक है. ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, और ये इसके अंदर फोल्ड्स हैं. और ये फोल्ड्स क्या कहलाते हैं, वन फोल्ड इज कॉल्ड विलस, right, and many villas together they are called villi. Now villi is the plural form and one is the villus, and each villus. अब ये जो विलस है, अब इसको फर्दर मज़ीद आपको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं कि ये एक विलस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. अंदर से उसके अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या फर्दर मज़ीद डिटेल्स हैं, राइट. अगर आप फर्दर इसके अंदर देखें तो राइट, ये हमारा ऐसा है. इफ़ यू कैन सी दैट ये हमारे सर्कुलर मसल्स नज़र आ रहे हैं, राइट, और ये हमारी एपिथेलियम. अब ये जो आपको छोटे छोटे से यहाँ पे ब्लॉक्स से नज़र आ रहे हैं, दीज आर द एपिथेलियम. एपिथेलियम लेयर है नहीं, एपिथेलियल सेल्स हैं, यानी आउट इनर मोस्ट जो सेल्स होते हैं ना लिमन के अंदर, ये वो वाले सेल्स हैं. ठीक है. और इन विलस के अंदर अगर आप देखें तो आपको नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नज़र आ रहा है. ब्लड कैपिलरीज आर, if the absorption isn't occurring well, then yes, we will be discussing once I'll discuss that how absorption is happening, then we will be discussing if absorption will not occur well, then how this is going to impact the health of the person. Okay. So as you can see that each villus has these a network of capillaries. Now they have another type of vessel as well, which is called the lacteal as well. Now lacteal, let me show you another diagram which is further the magnified image of one single villus, right, and you must
have to need to you must have to do what, that you have to remember the labeling of this villus, right? अब ये सिंगल विलस है, ठीक है, और ये इसकी जो आउटर मोस्ट है ये आपके जो है एपिथेलियल सेल लाइनिंग्स हैं। अच्छा, इनमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वही गॉबलेट सेल्स हैं जिनका विच आई हैड इनिशियली मेंशन कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के जो विच इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन उनको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर दीज सेल लाइनिंग? यहाँ पे ऐसे सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल दैट प्रोड्यूस म्यूकस, और वो यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना लेते हैं। दैट प्रोटेक्टिव लेयर्स बेसिकली protects the lining of the intestine और द एलिमेंट्री कैनाल, ताकि वो डाइजेस्ट ना हो सके, ठीक है, अपने ही एंजाइम अपने ही सेल्स को डैमेज ना कर सके। इफ़ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमने कहा था कि भाई यहाँ पर है पूरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। अब ये इन कैपिलरीज के अंदर, इस ब्लड के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह। लेकिन अगर आप देखें तो आपको एक ये वाला एक और वेजल नज़र आ रही है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेक्टियल, ठीक है। अब ये लेक्टियल क्या होती है? लेक्टियल इज़ बेसिकली आपकी आपकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रही है मटेरियल्स की, ठीक है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हो रही है। लेकिन हमारी बॉडी में एक और वैस्कुलर सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड द लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम में ब्लड नहीं होता है, बल्कि ब्लड का ही कुछ फिल्टर्ड हिस्सा होता है, प्लाज्मा और डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे लिपिड्स के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दे आर वाटर insoluble, सो दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते डायरेक्टली, तो वो लेक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो इस स्टेज पे चीज़ याद रखनी है ना, मैं एक आपका यहाँ पे टेबल भी बनाऊंगी कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस जगह पे एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन से प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि ये वाली चीज़ अक्सर ना P1 के क्वेश्चन में एज अ टेबल की फॉर्म में आती है कि विच रो इज़ करेक्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन और इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आपको एक पहले तो ये कि आपको यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि विच पार्ट इज दिस इज द एपिथेलियम सेल। अच्छा, ये जो हमारे सेल्स हैं ना, अब हमने ये देख लिया इन सेल्स की फर्दर इनके यहाँ पे भी दे हैव माइक्रोविलाई, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन हैव अ पिक्चर ऑफ द माइक्रोविलाई, ठीक है। If let me find, if I can find the picture of, now these cells are further having further folds on their top कि वो maximize कर सकें absorption of nutrients, ठीक है। ये मैं आपको I'm looking up for an image to show you further microvilli present, ठीक है। Okay. Uh, now as you can see here, ठीक है। Now see, these are the epithelial cell lining, ठीक है। these are the, this is basically this one fold is one villus, ठीक है। ये वन विलस के सेल्स हैं, और इन सेल्स के ऊपर भी आप देखें ये टेंटिकल्स नहीं है, ये फर्दर फोल्ड्स हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फर्दर फोल्ड्स बने हुए, ये माइक्रोविलाई कहलाते हैं। एंड माइक्रोविलाई बेसिकली इंक्रीजेस फर्दर सरफेस एरिया so that there is more exposure of nutrients with the cells, so that more nutrients, maximum nutrient may get absorbed, क्योंकि फूड तो आगे बढ़ता जा रहा है। अब अगर फूड रुक नहीं रहा है कि भाई जैसे स्टमक के अंदर फूड बेसिकली थोड़ी देर के लिए स्टे करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता जा रहा होता है पेरिस्टालसिस से। तो वो उस दौरान आपकी स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम की कोशिश ये होती है दैट इट हैज़ टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम
न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो क्वेश्चन था कि अगर एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी या फर्दर फॉर एग्जांपल ये विलाय जो हैं ये डैमेज हो जाते हैं, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो अगर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं होंगे आपकी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी बॉडी को मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी, आपकी बॉडी को अमाइनो एसिड्स कम मिलेंगे, फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल कम मिलेगा, आपकी बॉडी को ग्लूकोज कम मिलेगा, तो आपके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो जाएंगी, वाइटामिन कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं, आपके अंदर मिनरल आइंस कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो विलाय का बहुत एफिशिएंट होना, उसका सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये माइक्रो विलाया फर्दर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ताकि जो फूड बढ़ता जा रहा है उसको हर तरीके से उससे जो है वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लें। अब एक और चीज़ है, नाउ यू मस्ट नो द एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन जब कभी भी 2-4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एडेप्टेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो वहाँ पे आप ना सिर्फ इन टाइनी फोल्ड्स विलाय का जिक्र करेंगे, बल्कि आप ये भी बताएंगे कि द एपिथेलियल सेल्स आल्सो हैव माइक्रोविलाय व्हिच फर्दर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, मोर ओवर these epithelial cells have many mitochondria. Now this is a part of these cells के इनके पास as compared to other normal cells they have a lot of mitochondria for producing the energy so that active transport हो सके। अब आप कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों होगी, बिकॉज जब आपका खाना बिल्कुल फ्रेशली डाइजेस्ट होकर के जैसे इलियम में एंटर हुआ, तो उस वक्त आपके इलियम के अंदर ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो वो ब्लड में जो जाएगा वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, कॉल्ड डिफ्यूजन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जा रहा है। लेकिन फिर क्या होगा, लेकिन फिर ये हुआ कि आप जब आहिस्ता आहिस्ता करके आपका बहुत सारा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू ब्लड कम रह गई है, ब्लड में बहुत सारा चला गया और ल्यूमेन में बहुत कम है। उस वक्त भी सेल्स आपके ये चाहेंगे कि ये वेस्ट ना हो। अब डिफ्यूजन नहीं हो सकती है तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, अब अपनी एनर्जी जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, अब हम अपनी एनर्जी स्पेंड करके विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी दे विल बी एब्जॉर्बिंग फर्दर ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, कि वो उनको हर सूरत में उनकी कोशिश होगी कि मैक्सिमम ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ये माइक्रोविलाए इसके अंदर होते हैं हमारे पास हमारी इंटेस्टाइन की वॉल में, एंड दे इंक्रीजेस बेसिकली द सरफेस एरिया, फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, और इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पास पेपर्स में इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एडेप्टेशंस पता होनी चाहिए। जब कभी भी किसी भी जगह पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो अगर वो स्ट्रक्चरली अडेप्टेड होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर इसके पास ऐसी है तो क्यों है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टूवर्ड्स इज फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्बिंग इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इलेक्ट्रियल, तो कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, आई एम अबाउट टू ड्रॉ अ टेबल, इंसर्ट अ टेबल। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस, ओके, राइट, फर्स्ट इज आवर न्यूट्रिएंट, हमारा न्यूट्रिएंट कौन सा है, देन लोकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, that is where in this where either in blood capillary or either in lacteal it is being absorbed। ठीक है, and second, process of absorption। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। नाउ न्यूट्रिएंट हमारा क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, अच्छा, ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, सो ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है, और इसका जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है, फर्स्ट डिफ्यूजन एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों प्रोसेस से ये एब्जॉर्ब हो रहा होता है, राइट, ओके, एंड देन वी हैव अमाइनो एसिड्स। ठीक है, amino acids are are also absorbed in blood capillaries। ठीक है, ये भी अमाइनो एसिड ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होते हैं, और डिफ्यूजन, फर्स्ट डिफ्यूजन से एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से।
ठीक है। अब मुझे ये कौन बताएगा कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है? वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा? एनी वन, वेयर विल द वाटर एब्जॉर्ब, और एंड बाय विच प्रोसेस? Yes, anyone? Yes, osmosis. Very good. Where are the rest of the student? Abdul Ahad, are you there? Bete? No, he's not here. So we have only Yusra and Ibrahim with us. Okay, okay. ठीक है. That's why he was not asking the question. Okay, fatty acids. Now come towards the fatty acids and glycerol. ठीक है. Fatty acids and glycerols are insoluble in water. Right, तो blood is basically blood का content ही water होता है. Plasma is made up of water. They are not absorbed in blood capillaries. They are absorbed in lacteals, and they are not only the one. अभी हम आगे भी discuss करेंगे. ठीक है. Process of absorption वही आपकी diffusion है. ठीक है। सेकंड है आपका वाटर है, वाटर आपकी ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और मोस्टली 95% वाटर आपका आपकी ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी इलियम में एब्जॉर्ब हो जाता है, और इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑस्मोसिस। राइट। इसके बाद आते हैं हमारे वाइटामिन्स। अच्छा, जो हमारे वाइटामिन्स हैं, मिनरल आइंस हैं, ये भी ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो वाइटामिन्स हैं इसके अंदर हमारा थोड़ा सा फ़र्क है। जो हमारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। राइट। तो वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है। वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगा डिफ्यूजन के थ्रू। राइट। एंड इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है। अच्छा, कुछ विटामिन्स हमारे ऐसे होते हैं, लैक्टियल्स। अच्छा, लैक्टियल्स बेटे, दे आर, इफ यू कैन सी दैट दे आर द वेजल्स जिसके अंदर होता है लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है बेसिकली, ऑल दो इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट लेट मी टेल यू, आपका ब्लड जो होता है, आपकी बॉडी में दो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम चल रहे हैं, दो वैस्कुलर सिस्टम चल रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर फ्लोम और जाइलम होता है। ठीक है। जिसके अंदर एक के अंदर वाटर और मिनरल आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, और एक के अंदर अमाइनो एसिड्स और सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। सेम एज हमारे जो हमारे अंदर भी जो ब्लड होता है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड वेजल्स हैं, उसमें सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन लेक्टियल्स में हमारा लिम्फ होता है। लिम्फ के अंदर हमारे बेसिकली, लिम्फ इज बेसिकली इसका जो जो फंक्शन है वो हमारे इम्यून सिस्टम से बहुत कनेक्टेड है। इसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मास होते हैं। ठीक है। और शुरू में जो होते हैं वो हमारे फैट, जो लिपिड्स के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सिंस दे आर वाटर इनसॉल्युबल, वो इसमें सॉल्व हो रहे होते हैं। फिर क्या होता है, ये लिम्फ जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है बेसिकली, ये एक पॉइंट पे जाके हमारे ब्लड के जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके साथ मिक्स हो रहा होता है। यानी लिम्फ जाके मिल रहा होता है ब्लड के साथ। एक जगह पे ब्लड से कुछ प्लाज्मा वगैरह निकल के लिम्फ बना रहा होता है, जो एक अलग सी वेजल्स के अंदर जो है वो आपका फ्लो कर रहा होता है। ठीक है। और एक, और वो जाके मिल उसमें रहा होता है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि दीज आर दोज वेजल अंडरनीथ द विलाई दैट बेसिकली एब्जॉर्ब द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है। अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे लेक्टियल्स, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ की बात, लेकिन वो अभी आप, इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस। अभी बस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि our villi has lacteals and blood capillaries, and lacteals is those vessels in which the fatty acids and glycerols are absorbed। ठीक है। और अब ये जो, क्योंकि हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं होते, प्रोसेस से गुजरते हैं वो हमारे लेक्टियल्स के अंदर, और फिर जाके वो ब्लड के अंदर जा रहे होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होते हैं, और जो फैट सॉल्युबल, अच्छा वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको पता होना चाहिए, विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल हमारा विटामिन है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारे उसमें भी है, दैट इज विटामिन डी, वो लेक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है। एंड डिफ्यूजन।
Why fatty acid and glycerol? As I told you, fatty acid and glycerols, they are नॉट सॉलेबल इन वाटर। ठीक है, तो वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, वो एक पूरे मैकेनिज्म से गुजरते हैं, फिर जाके वो ब्लड के अंदर जा रहे होते हैं। सिस्टम ऐसा है कि वो पहले लेक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद वो जब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, लेक्टियल्स जब ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेजल्स के अंदर मिक्स जाके उनके साथ जॉइन हो रही होती है, उनका जंक्शन हो रहा होता है हमारे, वहाँ पे जाके वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। अल्टीमेटली जाते ब्लड में ही हैं। इनिशियली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सिर्फ लेक्टियल्स में जाते हैं। वाटर तो जाता ही हमारा ब्लड कैपिलरीज में है ना, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वाटर तो सारा एब्जॉर्ब हमारा ब्लड कैपिलरीज में होता है। ठीक है, और मिनरल आइंस भी हमारे सारे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। लेक्टियल्स में सिर्फ दो चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन डी। जो वाइटामिन सिर्फ विटामिन डी नहीं होते हैं, और भी विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर इनसॉल्युबल विटामिन होते हैं वो लेक्टियल में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। फिर इनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर इसके बाद जाके ये ब्लड में जा रहे पहुंच रहे होते हैं। So what will be the role of water? In which where role water has always a, देखिए वाटर का रोल क्या है। क्योंकि देखिए वाटर का रोल ऐसे है कि आपका जो ब्लड है ना, ब्लड इज 95% आपका, नॉट 95%, सॉरी। जो ब्लड के अंदर, ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है ब्लड सेल्स विच आर द 45%, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स वगैरह। और 55% ब्लड का होता है प्लाज्मा, जो कि उसका लिक्विड पार्ट होता है। अब आपका प्लाज्मा पानी से बना हुआ है, आपके प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 95% वाटर। तो समझ लें कि ब्लड के अंदर आपका पानी से बना हुआ है, ब्लड का जो सॉल्वेंट है ना, दैट इज वाटर। तो अगर कोई भी चीज़ अगर आपके ब्लड में जाएगी और वो सॉल्युबल नहीं होगी, तो आप मुझे बताइए उसकी उसकी मूवमेंट, आप सोचिए वो तो इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल किस तरीके से उसकी मूवमेंट होगी, किस, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकती है ना। पानी में जब तक कोई भी चीज़ सॉल्युबल नहीं होगी, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व, आपके जो सॉलिड्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं हुए हुए होंगे, तब तक ना उनके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल को हमारी बॉडी में फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन के नहीं रहना। इनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हमारी बॉडी अपने लिपिड्स में चेंज कर रही होती है। एक लिपिड्स वो होते हैं जो हम खाते हैं, पहले हमारी बॉडी इन लिपिड्स को प्रोसेस करती है इनटू द देयर स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से वो इतने बड़े बड़े मैक्रोमोलेक्यूल पास नहीं हो सकते। जो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर बॉडी अपने मॉलिक्यूल्स बनाएगी। मतलब आपकी स्किन के नीचे जो पूरी फैट लेयर है वो एडिपोज टिश्यूज है, फैट सेल्स हैं जिनके अंदर फैट स्टोर हुआ हुआ है। वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ हुआ, वो पूरे पूरे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो फैट बनाने के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को इस एमल्सिफाइड होना ज़रूरी है, कि उनके ऊपर एक्ट, आपका कोई एंजाइम उस किसी इंसॉल्युबल चीज़ के ऊपर काम कर ही नहीं सकता जब तक वो सॉल्युबल ना, जब तक वो वाटर में डिज़ोल्व ना हुई हुई हो। ठीक है, तो ब्लड में आपका यही रोल है। आपका ब्लड तो वाटर से बना हुआ है। ठीक है, तो वाटर का हर जगह पे इम्पोर्टेंट रोल है। और हमारा जो डाइजेशन में, केमिकल डाइजेशन की बेसिकली डेफिनेशन ही यही है, टू ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल सॉल्युबल पार्टिकल्स, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में चेंज करना। स्टार्च आप खाने में खा रहे हैं, स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर। केमिकल फिजिकल डाइजेशन से वो फिजिकली टूट रहा है, केमिकली नहीं टूट रहा, वो फिजिकली टूट के भी इंसॉल्युबल ही रहेगा। अमाइलेज ने जब उसको माल्टोज में चेंज किया, तो यस माल्टोज इज सॉल्युबल इन वाटर, यस ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर। वो ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल होगी तो वो मूव कर सकेगी। वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होगी तो सेल के अंदर से पास कैसे हो सकेगी वो चीज़। आपकी सेल मेम्ब्रेन में जो जो सॉलिड्स होते हैं ना, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होकर ही सेल के अंदर जा सकते हैं। अगर वो इनसॉल्युबल होंगे तो कैसे जाएंगे, आपके किस तरीके से मूव करेंगे। तो वाटर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, राइट। अच्छा, हम अब आते हैं, यहाँ पे हो गई आपकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोवेलाइज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एब्जॉर्प्शन हो गई ना। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, एक कुछ चीज़ है विच आई एम मिसिंग, आई नीड टू सी।
ठीक है। पेरिस्टालसिस हमने अगर हम देखें इसके अंदर, राइट, वी हैव डिस्कस पेरिस्टालसिस भी डिस्कस कर लिया है, और अब मैंने इलियम का भी जिक्र कर लिया है। अच्छा, अब इलियम से जब आपका फूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँचता है कोलन की तरफ। नाउ हियर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मिल रहा है। नाउ दिस इज द कोलन। कोलन काफ़ी वाइड होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो न्यूट्रिएंट अगर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच गया ना, अब वो उसको आपके जिस्म से बाहर जाना है, अब वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करती है जो एब्जॉर्ब होने से रह गया था। तो वाटर आपका जो फूड है ना, वो इसके अंदर भी आहिस्ता 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 करके पेरिस्टालसिस से मूव करता है, और ये है आपका रेक्टम। Now this is the rectum where your feces, your undigested food is stored for a while। और फिर यहाँ पर होते हैं स्फिंक्टर, होता है एक आपका एनस के इधर, जो कि जिसके मसल्स जो होते हैं जब वो रिलैक्स हो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी बाल मूवमेंट होती है, और आपके जो भी फीसेस आपके रेक्टम में स्टोर हुए हुए होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। एनस इज बेसिकली द होल, आपकी बॉडी का वो होल है जिसके थ्रू आपके फीसेस अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाती है ईजेशन। नाउ द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ योर बॉडी इज ईजेशन। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सका, भले से उसमें न्यूट्रिएंट्स भी थे, आपने सही से उसको च्यू नहीं किया था, या आप बीमार थे, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो ऑल द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड। फीसेस, अच्छा फीसेस में आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं? फीसेस में आपकी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, म्यूकस होता है। ये सारा म्यूकस वो होता है जो कि आपके गॉबलेट सेल्स बना रहे हैं। नाउ म्यूकस बेसिकली आपके अनडाइजेस्टेड फूड को मॉइस्चर रखता है उसको, वरना वो तो पानी तो सारा हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारी फेसेस तो बहुत हार्ड हो जाए। तो जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कि उनकी फेसेस बहुत हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को जो उसका बाल मूवमेंट है, जो बावल मूवमेंट है, उसको होने में बहुत मसला होता है, कि आपकी फेसेस बहुत मुश्किल से पास आउट हो पाती हैं। तो पानी होने की वजह से वो सॉफ्ट रहती हैं फेसेस, और वो ईजिली आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो द रिमूवल ऑफ दैट फेसेस फ्रॉम योर बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड, दिस इज कॉल्ड ईजेशन, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड टुडे, हमने रेक्टम और एनस का फंक्शन भी डिस्कस कर लिया। रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं आपके फेसेस, कोलन में कुछ स्टे नहीं कर रहा है, कोलन से गुजर के रेक्टम में स्टे कर रहा है, ठीक है। कोलन से गुजरता जा रहा है, पानी एब्जॉर्ब होता जा रहा है, वहाँ पे स्टे कर रहा है, और हमने पेरिस्टालसिस भी कंप्लीट कर लिया है। And now it's 8:57, the class will be over in a couple of minutes, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एसिमिलेशन नहीं कर सके, हमने एब्जॉर्प्शन पूरा कर लिया, ठीक है। मैं आपको एब्जॉर्प्शन के जो हमारे सिलेबस आउटलाइन है इसकी, ठीक है, मैं वो भी आप लोगों के साथ ओके शेयर कर दूं, कि हमने एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से जो लर्निंग आउटकम्स थी वो हम कवर कर चुके हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि येस वी हैव कवर्ड। हमारा जो लास्ट 8.3 था एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का, उसमें मैंने मोस्टली कवर कर दिया। अब सिर्फ एसिमिलेशन रहता है, विच इंशाल्लाह ताला हम इसको कल करते हैं, ठीक है। और कल वी विल बी सॉल्विंग पास्ट पेपर्स, ठीक है। इस चैप्टर के पास्ट पेपर्स में हम लोग करेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन, सो दैट यू गेट टू नो कि पास्ट पेपर सॉल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखें तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रही है, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। देन हमने एसिमिलेशन नहीं किया है। इसके बाद हमने विलस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने विलाई और माइक्रोविलाई की सिग्निफिकेंस पढ़ ली, कि दे आर इंक्रीजिंग द इंटरनल सरफेस एरिया। देन हमने ये भी बता दिया कि वाटर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिमन में एब्जॉर्ब हो रहा है और कोलन में हो रहा है, लेकिन मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। अब हमारा सिर्फ 2 पॉइंट्स रहते हैं जो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। एक तो ये 3 रहता है एसिमिलेशन, और एक ये 7 रहता है। बिकॉज आई डू नॉट हैव मच टाइम टू कंटिन्यू दिस, तो ये वी विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। या मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि एसिमिलेशन का अक्सर ऐसा होता है कि P1 के अंदर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, कि एक प्रोसेस के एग्जाम्पल देते हैं, एंड देन आस्क यू
कि ये कौन सा प्रोसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिमिलेशन जो होती है, मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बता देती हूँ जब तक क्लासेस कंटिन्यूड, कि एसिमिलेशन इज़ बेसिकली द अपटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स का अपटेक यानी एब्जॉर्प्शन, और इसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स को उन सेल्स के पास लेकर के जो जाते हैं, ठीक है, और सेल्स उनको जो अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, तो द यूज़ ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स बाय योर बॉडी, for example glucose is used for respiration, for example amino acids are used for making proteins, different proteins like hemoglobin, like your structural proteins of the cell membrane, many enzymes बनाने के लिए भी अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, हार्मोन्स बनाने के लिए भी चाहिए, which are protein in nature। इसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए फैट सेल्स बनाने के लिए भी, फैट स्टोरेज के लिए, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारा लिवर उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स का फर्दर यूज़ है ना एब्जॉर्प्शन के बाद, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जो सिंथेसिस वाली चीज़ें होती हैं वो एसिमिलेशन कहलाती हैं, और जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है वो डाइजेशन होता है, यानी स्टार्च का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना इज डाइजेशन, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना इज एसिमिलेशन। स्मॉल यूनिट से बड़ी चीज़ का बनना इज एसिमिलेशन, और बड़ी चीज़ से स्टार्च से ग्लूकोज का टूटना इज डाइजेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो ऑलमोस्ट एसिमिलेशन भी कवर हो गया। एसिमिलेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, दिस इज, इस चीज़ के लिए लिवर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। और लिवर कैसे, इसका लिवर का रोल क्या होता है कि लिवर बेसिकली व्हाट डज द लिवर डू, लिवर इज, यहाँ पे जो लिवर का रोल है वो ये है कि लिवर, हमने एक फंक्शन तो पढ़ा था कि लिवर बाइल बनाता है, राइट। सेकंड फंक्शन ये है कि आपका पास, अच्छा, कि जितने भी हमने हमने ये डिस्कस किए हैं कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और जो लेक्टियल में है वो भी हमारी ब्लड में आके मिल जाते हैं। नाउ दीज ब्लड कैपिलरीज जो इस यहाँ पर हैं आपके, हियर, ये जो आपके विलाय में है, ये सारी ब्लड कैपिलरीज मिलके एक ब्लड वेसल बना रही होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। एक बड़ी ब्लड वेसल बनती है, हेपेटिक पोर्टल वेन, दैट टेक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द ब्लड। यानी जितना भी कुछ आपने, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने डाइजेस्ट किया, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जमा होकर के हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाते हैं लिवर के पास। फिर इसके बाद लिवर एज अ मैनेजर उनको भेजता है सेल्स के पास, कुछ चीज़ों को खुद प्रोसेस करता है, कुछ चीज़ों को दूसरे सेल्स के पास भेजता है जहाँ पे वो चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं। तो लिवर इज़ बेसिकली यहाँ पे वो कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है, और एसिमिलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि वहाँ पे डीअमाइनेशन भी हो रही होती है। या आप एक्सक्रीशन पे पढ़ेंगे कि अगर आपने खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खा ली हैं तो अमाइनो एसिड्स बहुत सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके उसका सिग्निफिकेंट पार्ट खुद रख लेता है, और बाकी को यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी से स्ट्रीट आउट करवाता है। वो तो किडनी के ज़रिए हो रही होती है, मगर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो ये वाली जो लिवर का रोल है एसिमिलेशन का, ये कुछ हम थोड़ा एक्सक्रीशन में भी पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि हेपेटिक पोर्टल वेन is that blood vessel that carries the, I should write here that, right, that you should remember that hepatic portal vein is the blood vessel that carries the blood from small intestine to liver, ठीक है। and this blood is rich in nutrients absorbed by the villi, ठीक है। villi के थ्रू जो absorb हुए, they are reached here, and then they reach to the liver, and the liver manager, Mr. Manager, uh, assimilate them, किस चीज़ को कहाँ भेजना है, किस चीज़ को कहाँ रखना। That's why liver is a vital organ, and if liver cells are damaged or if there is any infection, so you people suffer, and
even the liver infections like hepatitis, they are fatal as well. लोगों की जान चली जाती है if the liver cells do not function well. So there are several functions. So what you need to remember is the name of this vessel, which is the hepatic portal vein that carries द ब्लड एंड दिस इज रिच. तो आपके ब्लड में जो ब्लड वेजल सबसे ज़्यादा रिच इन ग्लूकोज होती है, वो आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, क्योंकि उसके अंदर सारा जो ब्लड एब्जॉर्ब हुआ हुआ होता है ना, सारा जितना भी आपका एब्जॉर्ब हुआ हुआ होता है, आपका ग्लूकोज या मिनरलाइंस वगैरह, ये सारे उसमें मौजूद होते हैं, राइट. तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, कि ये आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन इज दैट इम्पॉर्टेंट वेन. एंड विद दैट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, विच आई वाज लाइक कि हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे. नो, इट्स नाउ कंप्लीटेड एंड वी विल बी डूइंग पास्ट पेपर इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.